सो गाइस अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक कंट्रोवर्सी है जो बहुत तूल पकड़े हुए है। ऑकवर्ड गोट करके एक लड़की है जिसने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पे सब जगह वीडियोस रील्स बना बना के भर दी हैं that I am a proud. Now she is proud of it. She is saying that she is proud of it. But what is there to be proud of? It's a slur. It's a slur. This is nothing but just normalizing the word, the abhorrent word. कितनी ही लड़कियां होती हैं पब्लिक स्पेस में जिनको रेप थ्रेट्स मिलते हैं, उनको इस तरह के वर्ड्स कहे जाते हैं, और कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अंदर से टूट जाती हैं, बिल्कुल वो अपने आप को खड़ी नहीं कर पाते. एंड एज अ वुमन शी इज नॉर्मलाइजिंग दिस slur, saying that she is proud of it. What is there to be proud of? I mean, what special skills do you need for that? This is a horrible slur that is used to delegitimize women, uh, of their dignity, of their hard work, and of their talents. I mean, calling yourself a prostitute and a proud prostitute, why? And obviously, this awkward goat girl is not a prostitute, she's an influencer. She's a psychologist, apparently, but it's her way to comment back on the society for judging girls having multiple body counts, which is just so stupid. I mean, तुम ना सिर्फ अपने आप को प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हो, तुम एनकरेज कर रहे हो सभी लड़कियों को, सभी जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप सब बोलो आई एम अ प्राउड. क्यों बोले भाई, क्यों बोले? मतलब सी दिस इज वाई सोशल मीडिया इज सो डेंजरस. दिस इज वाई, जैसे कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में तलवार. सोशल मीडिया या ये फॉलोइंग ट्रेंड जो है, फॉलोअर्स का ट्रेंड, ये सही में कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हुए हैं जिन जो लिटरली बंदर है और उनके हाथ में तलवार आ गई है, और उनका जितना दिमाग है वो उतना ही चलाते हैं. उनकी बस की और कुछ सोचना है नहीं, उनकी बस की कोई ढंग का कंटेंट बनाना नहीं है, उनकी बस की कोई जेन्युइन थॉटफुल कंटेंट नहीं बनाना. ऑल दे थ्राइव ऑन इज रेज बेट एंड रेज क्लिक्स, या किसी को ऑफेंड कर दो या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दो. कुछ नहीं मिला तो खुद को ही प्रोस्टिट्यूट बोल के नाचने लगो, सबको एनकरेज करो कि तुम भी अपनी प्रोफाइल पे ये डालो. क्यों डाले भाई? इट्स जस्ट नथिंग but a way to gain more followers, to have more traction, that finally somebody pays attention to this stupid faced, awkward goat. And she's having a time of her life. She's loving it. She's loving every part of it, every second of it. That yes, finally, my worthless piece of shit life is actually amounting to something. And how did it got there? By calling herself a. But why encourage other girls? Why encourage other people, other girls, other young girls? I mean, I was looking on Twitter, and she had actually influenced a 15-year-old follower of her to post this, to post the tag in her profile. और फिर उसने उस लड़की की फोटो के साथ अपनी स्टोरी पे भी डाल दिया. Basically, eligible for a POCSO act. Besides, what is there to be proud of to be a prostitute? You could just say, I'm a prostitute. Why say I am proud to be a prostitute? Like, how does it, how the pride, how does the pride gets inflamed by your profession? What is there to be so proudful? ठीक है जो करते हैं, I mean, this is just, see, this is how propaganda, this is how negative and shitty people in society, this is how desperation to be recognized and known in this world, people who have otherwise no talent or skill in their life, it's their high time, it's their golden moment, and they are ready to sell the world for it. They're ready to set the world on fire just so that they can have their 2 minutes of euphoria, or news, or news articles being written on them. So these dimwits, these sort of girls, awkward goat type of girls, they think that, let's fuck up the society. Society ने हो सकता है ये बचपन से बेचारे धुतकारे गए हो, इनको किसी ने पूछा ना हो जिंदगी में, तो ये सोच रहे हैं फाइनली वी हैव अ टाइम टू ruin this society, चलो वही आग लगाए. So she's like, I'm a proud prostitute, and I'm like there's nothing to be proud to be a prostitute. There could people in prostitution are uh, either from very desperate times or mostly forced into it. And instead of raising awareness towards this horrible industry,
towards liberating women, towards guiding women into the mainstream and create a society जहाँ पे इस तरह की चीज़ें कम होती जाएं. You are saying, you're patronizing and you're saying कि it's a respectable profession. You're proud to be a prostitute. Like what? How does that become a respectable profession? Selling your body for money? It's not. And girls, if anybody is telling you that it's a profession, it's her job. It's her job. Don't fucking believe them. Alright? दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे. और कोई भी अच्छा इंसान किसी भी लड़की को इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं करेगा कि आप इस तरह की चीजें बोलो या इस चीज को नॉर्मलाइज करो सोसाइटी में. And this awkward goat girl is like she thinks that she is being witty and countering this multiple body counts perception in society, a negative perception having multiple body counts in society. She thinks that she's fighting that. And how does she fight that? She's saying, have more body count, have more body count. She's like, now, based on whatever trend this awkward goat is doing, it's apparent she has a very high body count and she is definitely uncomfortable with this awareness in society about, or you can say this negative connotation regarding body count of a girl or a boy. And then she's like, man, I already have like 50 plus body count. What am I supposed to do? So she's like out in the open. She's like, yeah, I'm a proud prostitute. And then encouraging other girls. She's encouraging young girls. She's influencing them. She's influencing other girls. She's influencing other girls and normalizing this thing. She's normalizing having multiple partners. She's normalizing having your sexual fantasies to be the primary focus of your life. She's trying to equate this having multiple body counts as sort of freedom or liberation. यही चीज खुशबू पटानी भी करती है. I mean, what is this fascination with sex, dude? I mean, fuck. यही आपकी capability है, यही आपकी capability है. What the fuck? How ridiculous, how disgusting, to be honest. आप जिंदगी में आए हो, सिर्फ एक ही ऑर्गन लेकर आए हो क्या? भगवान ने हाथ भी दिए हैं, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, दिमाग दिया है, कुछ क्रिएट करो. नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ऑर्गन जिसके लिए जीते मरते हैं हम. हार्मोन्स की बात होती है, वो हार्मोन्स, अबे हार्मोन 10 तरह के हार्मोन्स होते हैं शरीर में, एक ही हार्मोन को पकड़ के बैठे हुए हैं भाई. फैंटेसीज की बात करते हैं, अबे और कोई फैंटेसी नहीं आती है? मतलब सपने भी देखेंगे तो सिर्फ जस्ट व्हाट द. और ये जो गंदपना है, ये जो दिमाग की गंद है, इसको सोसाइटी में फैलाना. एज आई सेड, सोशल मीडिया बंदर के हाथ में तलवार है. ऐसे ऐसे गधे, वर्थलेस पीस ऑफ शिट्स सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं और कुछ भी बके जा रहे हैं. और ऐसा होता है ना, एक बेवकूफ बोलता है और 50,000 लोग सुनते हैं, तो 50,000 लोगों के लिए वो एक नई बात हो जाती है. अच्छा ऐसा और बोल एक ही रहा है, तो उस एक की रेलेवेंस कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो एम्पलीफाई बहुत हो रही है. तो इसी तरह से ये नए कॉन्सेप्ट, बॉडी काउंट, प्रोमिस्क्यूइटी, कि आपकी फ्रीडम और लिबरेशन यहीं एग्जिस्ट करती है. आज से पहले तो लड़कियां और औरतें पता नहीं कैसे ही जीती थी. हमारी सोसाइटी जो हजारों सालों से आ रही है, उसमें तो सिर्फ प्रताड़ना ही थी और कुछ नहीं था. I mean, it's just distorting, and however beautiful a thing you may have, उसको डिस्टॉर्ट करो तो सब गोबर बनी जाता है. तो हमारी सोसाइटी इतनी बुरी नहीं थी, बट अब होती जा रही है, क्योंकि डिस्टॉर्शन का काम बहुत समय से चल रहा है. इस तरह के बेवकूफ़ी वाले कॉन्सेप्ट बहुत समय से आ रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं लड़कियों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, फिर कहते हैं देखो वहाँ कहीं मूर्ति में किसी जो है पुराने उसमें कपड़े नहीं है उस मूर्ति में. तो भाई उसमें नहीं है तो और जगह तो है. अभी एक जगह नहीं है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट करके जाएगा, देखो इंडियन सोसाइटी में कपड़े नहीं हुआ करते थे. आई मीन व्हाट द एक्चुअल फक. लाइक अगर हम टोटल बिगिनिंग पे जाएं तो ऑब्वियसली किसी सोसाइटी में कपड़े नहीं थे, एकदम बिगिनिंग में जाएं. लेकिन द पॉइंट इज सिविलाइजेशन डेवलप हुई,
मतलब आपको लगता है कि रामायण रामायण हुई, महाभारत हुई, राजा हुए इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, और वहाँ कपड़े ही नहीं थे? तो ये क्या बकवास बात, मतलब इक्वेट ऐसे करा जाता है, एक मूर्ति में कहीं एक मूर्ति दिखा देंगे, देखो यहाँ ऐसे, तो नॉर्मलाइज सब सब सोसाइटी पे वो इम्पोज कर दिया जाता है। मोदी जी भी कहीं कह रहे थे कि जो है लड़कियां जो है शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, हमारे देखो मूर्तियों में शॉर्ट स्कर्ट। अरे भाई, तुम्हें क्या पड़ी है ये सब शॉर्ट स्कर्ट प्रमोट करो, ये करो वो करो? कपड़े कन्वीनियंस के हिसाब से पहनो ना, जिसको भाई कन्वीनियंट जो लगे वो पहनो। क्यों किसी को अनकंफर्टेबल करो, क्यों किसी को फोर्स करो, क्यों ये चीजें नॉर्मलाइज करो? कई लड़कियां होती नहीं होती कंफर्टेबल शॉर्ट स्कर्ट में भाई, कई लड़कियां होती हैं नहीं कंफर्टेबल होती हैं शॉर्ट्स में। मीन वाई नॉर्मलाइज दीज थिंग्स? एंड सोसाइटी में ऐसे तो बहुत कुछ होता था, मैं बता रहा हूँ, चोरी चकारी भी हुआ करती थी मोदी जी। अगर आप ये पुराने एग्जाम्पल्स देखो फला मूर्ति में, तो भाई कहीं कहीं चोरी चकारी भी हो रही होगी पहले, तो जरूरी नहीं है जो पास्ट में जो भी कुछ होता था वो सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। सो हमें हमें सोसाइटी, इट्स लाइक यू हैव टू फोर्ज द सोसाइटी फॉरवर्ड। आप यहाँ क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया में, पुरानी चीजों को लेके बैठे रहो। अरे फला एक आध एक्सेप्शन ढूंढ निकालेंगे, अरे वहां ऐसा होता था, अरे उस मूर्ति ने कपड़े नहीं पहने, अरे वहां पे शॉर्ट स्कर्ट, अरे अरे भाई, इट्स नॉट अबाउट पहले क्या होता था। पहले तो बंदर भी होते थे, पहले हम सब बंदर ही थे, तो फिर क्या बंदरों की तरह करने लगे अब? लेकिन आज की डेट में आधार कार्ड भी रखते हैं हम, आज की डेट में गाड़ी भी रखते हैं, आज की डेट में जॉब पे भी जाते हैं, आज की डेट में इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। पहले बंदर हमारे पूर्वज तो नहीं करते थे ये सब, तो क्या पेड़ों पे उछलने कूदने लगे हैं? आज हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग भी इवॉल्व हो रही है किसी कैसे, कितने सिविलाइजेशन जैसे डेवलप हुई, उसमें सब चीज मतलब बेस्ट चीज आगे बढ़ती रही। और आप इस मोमेंट पे आके हेरिटेज कैप्चर करने के चक्कर में सब पुराना पुराना जो था सब बढ़िया था। भाई सतयुग में भी बुरे लोग थे, द्वापर युग में भी रावण थे, तो इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग वाज ग्रेट बैक देन। सो हमें आज की सोसाइटी को फोर्स करते हुए आगे जाना है, और इस तरह के लोगों को जैसे ऑकवर्ड कोट हो गई, इतने कितने ही रिबेल के लाइक इसका तो नाम लेने में मुझे ऐसा लगता है, ऐसे बंदरों के हाथ में जो तलवार आई हुई है, आई थिंक उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जॉब सिर्फ रोड बनाना नहीं है, तो गवर्नमेंट का जॉब सोसाइटी लेवल पे भी अपना कंट्रोल करने का, सोसाइटी कहाँ जा रही है सोसाइटी को शेप करना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। ऐसा नहीं है आप छुट्टा छोड़ दो और जो चल रहा है सब बढ़िया भाई, सब अपनी सिविलाइजेशन है, तो फिर क्राइम जो कर रहा है उसको भी सिविलाइजेशन मान लो। या तो वो उसके अंदर की हॉर्मोन्स थे, हॉर्मोन्स थे उसके, वो तो हमारे यहाँ सब चलता ही है, पहले भी होता था आज भी हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे कर दो ना फिर तो, जंगल, वी आर लिविंग इन द जंगल, फिर तो कोई सिविलाइजेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। And I'm really disturbed seeing this. I mean, young girls coming out and saying, I'm a proud prostitute, and like, whatever. Nobody gives a shit about you. You are a you are a fart in the wind. I'm telling you, all these girls who think that, oh my god, they're such a big deal because they are girls. You're nothing but a fart in the wind. You're gonna come and you're gonna go. Civilization आती जाती रही है, लोग जीते हैं मरते हैं. Who the fuck are you? तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसीज या तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े भरे पड़े हैं, दिस इज टेम्परेरी, ठीक है? दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तुम जिस चीज पे तुम अटैक करके, जिस चीज पे पूरा होल्ड करके और जिस चीज को अपनी लाइफ बना रहे हो ना, वो तुम्हारी सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है, और तुम्हारी लाइफ में भी ये चीजें बहुत छोटे समय के लिए, 5-10 साल तक, उसके बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। सो इट्स बेटर कि सोसाइटी में और जेन्युइन थिंकर्स आगे बढ़ें, जेन्युइन लोग आगे बढ़ें जो सोसाइटी में सेंस दे। आई मीन व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी? और ऑकवर्ड गोट टाइप के बंदरों से तलवार छीनी जाए।